we will start our first short story, that is A Living God. From immemorial time, the shores of Japan have been swept at irregular intervals of centuries by enormous tidal waves. Tidal waves caused by earthquakes or by submarine volcanic actions. फ्रॉम इमेमोरियल टाइम्स मीन्स जो समय हमें याद नहीं है. अब कितनी समय से जापान में सुनामी आ रही है, अब ये तो किसी को नहीं याद है. तो इनरेगुलर इंटरवल्स पे सेंचुरीज से वहां पर सुनामी आ रही है. बाय इनॉर्मस टाइडल वेव्स, मतलब विशाल टाइडल वेव्स आती हैं और कितनी बहा के एरियो को ले जाती हैं. Tidal waves caused by earthquakes or by submarine volcanic actions. Sometimes submarine volcanic actions की वजह से वो tidal waves आती हैं और sometimes earthquake की वजह से. These awful sudden risings of the sea are called the Japanese tsunami. ये जो भयानक विशाल राइजिंग होती है, उफान होता है समुद्र में, उसे सुनामी कहते हैं जापान में. The last one occurred on the evening of June 17, 1896. तो ये जो स्टोरी हमारी लिखी गई है, उस डेट के हिसाब से जो लास्ट सुनामी आई थी वो आई थी 1896, 17th of जून को. When a wave nearly 200 miles long struck the northeastern provinces of Miyagi, Iwate, Aomori, wrecking scores of towns and villages, ruining whole districts and destroying nearly 30,000 human lives. इन एरियो को जापान के हिट करा था सुनामी ने और wrecking scores of towns, scores means 20, 20 शहर और गांव सब बर्बाद हो गए थे. ruining whole district, even पूरी डिस्ट्रिक्ट बर्बाद हो गई थी. and destroying nearly 30,000 human lives, और even 30,000 human life destroy हो गई थी. The story of Hamaguchi Gohi is the story of a like calamity which happened long before the era of Meiji on another part of the Japanese coast. Hamaguchi Gohi is the story of a like calamity. Hamaguchi Gohi की जो ये कहानी है वो उसी तरह की एक calamity, उसी तरह की एक आपदा की है, which happened long before the era of Meiji. Era of Meiji, Meiji is a period which is mentioned here, and you can write it also that from 23rd October 1868 to 30th of July 1912 तक का जो समय था वो जापान में पीरियड ऑफ मेजी के नाम से जाना जाता है. ऑन अनदर पार्ट ऑफ द जापानीज कोस्ट, एक अलग पार्ट की स्टोरी है, जापानीज कोस्ट की स्टोरी है, ये जापानीज के कोस्टल एरिया की स्टोरी है जो हम आगे पढ़ेंगे. He was an old man at the time of the occurrence. That made him famous. He was the most influential resident of the village to which he belonged. He had been for many years its Murausa or headman, and he was not less liked than respected. The people usually called him Oji-san, which means grandfather. But being the richest member of the community, he was sometimes officially referred to as the Choza. He used to advise the smaller farmers about their interests, to arbitrate their disputes, to advance them money at need, and to dispose of their rice for them on the best terms possible. So, जब ये घटना हुई थी, ये कैलामिटी जापान में आई थी, उस समय जिसमें यहाँ पे जो मेजर कैरेक्टर है स्टोरी में वो ओल्ड मैन है, उनका नाम होता है हामागुची गोही. और उस कैलामिटी की वजह से वो ओल्ड मैन फेमस हो गए थे. अब वो स्टोरी में हम पढ़ेंगे किस तरह से फेमस हुए थे. ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रेजिडेंट, वो बड़े ही प्रभावशाली रहने वाले थे वहां पर. कहाँ के? गांव के. टू विच ही बिलोंग, जिस गांव से वो बिलोंग करते थे. ही हैड बीन फॉर मेनी ईयर्स इट्स मुरासा, वो उस गांव के हेडमैन भी काफी समय तक रहे थे, आप मुखिया कह सकते हो. एंड ही वॉज नॉट लेस लाइक्ड देन रिस्पेक्टेड, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेडमैन थे वो इस वजह से लोग उनकी इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे उनको, इवन लोग उन्हें पसंद भी करते थे. द पीपल यूजली कॉल्ड हिम ओजिसा, विच मीन्स ग्रैंडफादर. मोस्टली पीपल उन्हें ओजिसा के नाम से जानते थे, जिसका मतलब होता है दादा, ग्रैंडफादर. But being the richest member of the community, he was sometimes officially referred to as the Choja. Choja means the richest person. आता है कभी कभी MCQs में, तो आप लोग मार्क करते चलिए, ये सारे वर्ड्स भी आप लोग याद रखिएगा. ओजिसा मीन्स ग्रैंडफादर, and Choja means the richest man, or Murausa means the headman. He used to advise the smaller farmers about their interests, to arbitrate their disputes, to advance them money at need. वो हामागुची गोही जो ओल्ड मैन थे, वो स्मॉल फार्मर्स को
एडवाइस किया करते थे किस तरह की क्रॉप्स कहाँ लगाई जाएंगी, या जो भी उनको प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस होती थी तो उसमें उन्हें हेल्प करते थे। टू आर्टिबेट देयर डिस्प्यूट्स, उनके मैटर्स में न्याय किया करते थे। टू एडवांस देम मनी एट नीड, इवन उनको जरूरत पड़ने पर पैसा भी देते थे। एंड टू डिस्पोज ऑफ देयर राइस फॉर देम ऑन द बेस्ट टर्म्स पॉसिबल, और उन छोटे छोटे किसानों का चावल खेती बाड़ी जो भी करते थे वो भी बिकवाया करते थे जितना पॉसिबल हो पाता था, अच्छे टर्म्स पे, अच्छे मनी पे, अच्छे प्रॉफिट पे। Hamaguchi's big thatched farmhouse stood at the verge of a small plateau overlooking a bay. The plateau, mostly devoted to rice culture, was hemmed in on three sides by thickly wooded summits. From its outer verge, the land sloped down in a huge green concavity as if scooped out at the edge of the water, and the whole of this slope, some 3/4 of a mile long, was so terraced as to look, when viewed from the open sea, like an enormous flight of green steps divided in the center by a narrow white zigzag, a streak of mountain road. सी, यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन है हामागुची के घर का। हामागुचीज बिग थैच्ड फार्म हाउस, उनका बड़ा सा छप्पर वाला फार्म हाउस कहाँ पर था? इट स्टूड एट द वर्ज ऑफ अ स्मॉल प्लेट्यू। वर्ज मीन्स किनारा, एक छोटे से प्लेट्यू के किनारे पे उनका घर था। ओवरलुकिंग अ बे, एक खाड़ी उसके सामने थी। द प्लेट्यू मोस्टली डिवोटेड टू राइस कल्चर, वो प्लेट्यू पे ज्यादातर राइस की खेती होती थी। was hemmed on three sides by thickly wooded summits, और तीन तरफ से वो घिरा हुआ था, वो प्लेट्यू तीन तरफ से घिरा हुआ था, चोटियां थी, लंबी लंबी सी जंगल था, आप ये कह सकते हो, फॉरेस्ट था तीनों तरफ उसके। From its outer verge, the land sloped down in a huge green concavity. Concavity समझते हैं आप? गड्ढेदार एरिया। तो जो उसका फोर्थ पार्ट था, तीन साइड से तो वो चोटियों से घिरा हुआ था, और जो उसका फोर्थ पार्ट था उसका आउटर वर्ज ऐसा था जैसे कि वहां की लैंड को स्लोप था वहां की लैंड में, और कनकेविटी के साथ था, गड्ढेपन के साथ था। एज इफ स्कूप्ड आउट, ऐसा लगता था कि जैसे अंदर से स्कूप निकाल लिया गया हो, गड्ढा सा था। एट द एज ऑफ द वाटर, ये गड्ढा कहां तक जाता था? पानी के किनारे तक जाता था। ऑन द होल ऑफ दिस स्लोप सम 3/4 of a mile long, और जो ये स्लोप था वो 1 मील का 3/4 था। Was so terraced as to look, और बड़ा ही जीनेदार दिखता था जब उसे देखा जाता था। when viewed from the open sea, जब उसे ओपन सी से नीचे से देखा जाता तो लगता था कि ग्रीन कलर का टेरेस लाइक एरिया है, सीढ़ीदार एरिया है। Like an enormous flight of green step, ऐसा लगता था जैसे कि विशाल जीने बने हुए हैं हरे हरे ग्रीन कलर के, क्योंकि पूरा ग्रीनरी थी वहां पे। Divided in the center of a narrow वाइड zigzag a streak of mountain road, और बीच में एक zigzag पतली सी रोड काटती जाती थी, and that is a mountain road. 90 thatched dwellings and a Shinto temple composing the village proper. उस विलेज में 90 छप्पर वाले घर थे, dwellings मतलब होता है हाउस, and a Shinto temple, और एक टेम्पल था, Shinto temple. Composing the village proper stood along the curve of the bay. उस बे के कर्व पे ये सारे घर स्थिर थे। And other houses climbed straggling up the slope from some distance on either side of the narrow road leading to Choja's home. और बाकी के कुछ घर भी थे, वो नैरो रोड जो थी, zigzag रोड, उसके साइड्स पे और भी कुछ स्कैटर थे हाउसेस जो लीड करते थे चोजा के घर तक। यहाँ पे देखिए एक पार्ट फिनिश कर दिया है, डिस्क्रिप्शन का पार्ट फिनिश हो गया है, जिसमें चोजा के बारे में बताया है, हामागुची के बारे में बताया है जो कि हेडमैन है, और उनके घर के बारे में बताया है कि उनका घर किस एरिया में है, घर का पूरा डिस्क्रिप्शन है। अब आगे हम स्टोरी के बारे में देखिए, पढ़ते हैं। One autumn evening, Hamaguchi Gohi was looking down from the balcony of his house at some preparations for a merrymaking in the village below. There had been a very fine rice crop, and the peasants were going to celebrate their harvest by dance in the court of the Ujigami. The old man could see the festival banners fluttering above the roofs of a solitary street, the strings of paper lanterns festooned between bamboo poles, the decorations of the shrine, and the brightly colored gathering of the young people. He had nobody with him that evening but his little grandson, a lad of 10, the rest of the household having gone early to the village. He would have accompanied them had he not been feeling less strong than usual. See, one autumn evening, Hamaguchi Gohi was looking down from the balcony of his house. एक
ऑटम के सीजन की इवनिंग में हामागुची अपनी बालकनी से नीचे की तरफ झांक रहे थे, देख रहे थे, वहां जहां पर कुछ प्रिपरेशन चल रही थी, कुछ खुशियां मनाने जा रहे थे गांव के लोग नीचे की तरफ, नीचे के एरिया में। There had been a very fine rice crop, और वो लोग मेरी मेकिंग क्यों कर रहे थे? क्योंकि उस साल उन्हें बहुत अच्छी राइस की क्रॉप मिली थी। And the peasants were going to celebrate their harvest, और उस उपजाऊपन को वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। जो किसान थे वो नीचे की तरफ गए थे, सब इकट्ठा हो गए थे उसे सेलिब्रेट करने के लिए। By a dance in the court of Ujigami, उजिगामी गॉड के लिए आया है वर्ड यहाँ पे, तो गॉड के कोर्ट में सब हाजिर हो जाते हैं और वहां पे डांस करते हैं और उस हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करते हैं। The old man could see the festival banners fluttering above the roofs of the solitary street. उन अकेली स्ट्रीट्स में, क्योंकि सब विलेजर्स तो इकट्ठा हो गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मैरी मेकिंग कर रहे हैं, तो वो से ऊपर से क्या दिख रहा है, वो उड़ते हुए बैनर्स दिख रहे हैं, झंडे दिख रहे हैं, कुछ कलरफुल बैनर्स दिख रहे हैं। The strings of paper lanterns festooned between bamboo poles. बैम्बू पोल्स से उन्हें बांधा गया है, एक बैम्बू पोल से दूसरी बैम्बू पोल तक के, वो उसे दिख रहे हैं। The decorations of the shrine, मंदिर की, shrine means मंदिर, मंदिर की डेकोरेशंस दिख रही हैं। And the brightly colored gathering of the young people, और अलग अलग खुश हैं लोग, तो अलग अलग डिफरेंट कलर्स के ड्रेसेस पहने हैं और ऊपर से उसे दिख रहा है कि हाँ नीचे बहुत अच्छा व्यू है, कलरफुल व्यू है। He had nobody with him that evening but his little grandson. उस दिन उसके साथ कोई नहीं होता है, ऑब्वियसली सभी गए होते हैं मैरी मेकिंग में, तो उसके साथ कौन होता है, उसका ग्रैंडसन होता है, पोता होता है, a lad of 10. He was a boy of 10. 10 साल का लड़का है वो। The rest of the household having gone early to the village, वो पहले ही चले गए हैं विलेज, गांव की तरफ। He would have accompanied them had he not been feeling less strong than usual. अगर वो आज के दिन कम ताकत नहीं महसूस कर रहा होता, मतलब यूजुअली वो स्ट्रॉन्ग फील करता है, बट आज आम दिनों से उसे, बूढ़ा है वो, ओल्ड मैन है, तो आज आम दिनों से वो थोड़ा सुस्त फील कर रहा है, आज वो फीलिंग नहीं अच्छा कर रहा है, इसलिए वो आज नहीं जाता है। The day had been oppressive, and in spite of a rising breeze, there was still in the air that sort of heavy heat which, according to the experience of the Japanese peasant at certain seasons, precedes an earthquake. And presently an earthquake came. It was not strong enough to frighten anybody, but Hamaguchi, who had felt hundreds of shocks in his time, thought it was queer, long, slow, spongy motion. Probably it was, but the after tremor of some immense seismic action very far away, the house crackled and rocked gently several times, then all became still again. See, he is telling the day had been oppressive. आज का दिन बड़ा oppressive था, परेशानी भरा था। And in spite of a rising breeze, हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी हवा तो चल रही थी, there was still in the air that sort of heavy heat. फिर भी उस भीनी भीनी ब्रीज में, हवा में एक गर्मी सी थी, एक उसे महसूस हो रहा था, it is a sort of heavy heat, which according to the experience of a Japanese peasant, उस बूढ़े peasant के according ऐसा कब होता है, at certain seasons precedes an earthquake. ये ऐसा जब होता है जब earthquake आने वाला होता है, उससे पहले होता है ऐसा। Precedes an earthquake means before an earthquake. And presently an earthquake came. और अभी अभी एक earthquake आया. It was not strong enough to frighten anybody. और इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था कि लोग उससे डर जाएं. But Hamaguchi, who had felt 100 of shocks in his time, लेकिन Hamaguchi ने अपनी जिंदगी में 100 of shocks, क्योंकि जापान में तो सुनामी और earthquake आया ही करते हैं, 100 of shocks अपनी लाइफ में देखे थे, thought it was queer. उसे वो कुछ अजीब लग रहा था, विचित्र लग रहा था, एक लंबा स्लो मोशनी स्पॉन्जी मोशन था। Probably it was but after tremor of some immense seismic action very far away. और वो सोच रहा था शायद ये ऐसा हो जो अर्थक्वेक आया है उसके बाद के कुछ एक्शंस हैं। seismic action means earthquake, so seismic action जो earthquake के लिए आया है यहाँ पे वर्ड, तो हो सकता है ये after tremor हो। The house crackled and rocked gently several times. घर क्रैकल करता है और रॉक करता है, झूमता है थोड़ा सा कई बार। Then all became still again. फिर सब कुछ स्थिर हो जाता है। As the quaking ceased, Hamaguchi's keen old eyes were anxiously turned towards the village. It often happens that the attention of a person gazing fixedly at a particular spot or object is suddenly diverted by the sense of something that knowingly seen at all, by a mere vague feeling of an unfamiliar in that dim out circle of unconscious perception which lies beyond the field of clear vision. Thus it chanced that Hamaguchi became aware of something unusual in the offing.
He rose to his feet and looked at the sea. It had darkened quite suddenly and it was acting strangely. It seemed to be moving against the wind. It was running away from the land. See, as the quaking ceased, Hamaguchi's keen old eyes were anxiously turned toward the village. जब वो शेकनिंग, जो अर्थ की शेकनिंग हुई, अभी अर्थक्वेक आया, वो रुकी, तो हामागुची की जो वो शार्प बूढ़ी आंखें थी, वो चिंता से गांव की तरफ, गांव नीचे गांव आसी सब एंजॉय कर रहे हैं, उधर जाती हैं. It often happened that the attention of a person gazing fixedly at a particular spot or object is suddenly diverted by a sense of something not knowingly seen at all. और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब इंसान के माइंड में कुछ परसेप्शन चल रही होती है तो एकदम से उसका दिमाग दूसरी तरफ जाता है. तो वही यहाँ पे हुआ कि उसे दिख नहीं रहा है कुछ, लेकिन उसे महसूस हो रहा है कि कुछ अजीब होने वाला है, इसलिए फटाफट से वो गांव की तरफ, अपने गांव वालों की तरफ देखता है. By a mere vague feeling of the unfamiliar in that dim outer circle of unconscious perception which lies beyond the field of clear vision. By a mere vague, सिर्फ केवल धुंधली सी feeling. Mere vague means केवल धुंधली feeling of the unfamiliar, कुछ अपरिचित. ऐसा नहीं कि वो जानता था ये सब होने वाला है, लेकिन सिर्फ उसने महसूस हो रहा था क्योंकि वो एक्सपीरियंस था. In that dim outer circle of unconscious perception, उस फीलिंग को अनकॉन्शियस परसेप्शन कहा जा रहा है कि वो क्लियर नहीं है. वो देख तो सामने मैदान में रहा है, विलेज वासियों को रहा है, लेकिन उसके माइंड में एक अनकॉन्शियस परसेप्शन चल रहा है. Thus it chanced that Hamaguchi became aware of something unusual in the offing. तो ऐसा लग रहा है कि हामागुची थोड़ा सा अवेयर हो गया है उन चीजों से जो ऑफिंग में, समुद्र में होने वाली हैं. He rose to his feet and looked at the sea. फिर वो थोड़ा सा आगे की तरफ देखता है खड़ा होके और समुद्र में देखता है. It had darkened quite suddenly, और वो एकाएकी डार्क हो जाती है. And it was acting strangely, और अजीब तरह से वो पानी और समुद्र बिहेव कर रहा है. It seemed to be moving against the wind. हवा के डायरेक्शन से वो अगेंस्ट भाग रहा है. पानी हवा के डायरेक्शन के साथ फ्लो ना करके वो अगेंस्ट भाग रहा है. It was running away from the land, और पानी लैंड की तरफ ना जाके वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, लैंड के. Within a very little time, the whole village had noticed the phenomena. Apparently, no one had felt the previous motion of the ground, but all were evidently astounded by the movement of the water. They were running to the beach and even beyond the beach to watch it. No such ebb had been witnessed on that coast within the memory of living man. Things never seen before were making apparition. Unfamiliar spaces of ribbed sand and reaches to weed-hung rock were left bare even as Hamaguchi gazed, and none of the people below appeared to guess what that monstrous ebb signified. Within a very little time, बहुत कम ही समय में पूरे गांव ने नोटिस कर लिया इस फिनोमेना को. Apparently, no one had felt the previous motion ऑफ द ग्राउंड. जो अभी अर्थक्वेक आया था उसे तो किसी ने नहीं नोटिस किया था, लेकिन ये जो पानी में अजीब बिहेवियर हो रहा है वो सबने नोटिस कर लिया था. बट ऑल वर एविडेंटली अस्टाउंडेड. अब उनके सामने ये एविडेंस था, प्रूफ था, बट स्टिल दे वर सरप्राइज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द वाटर. पानी के मूवमेंट को देखते दे वर सरप्राइज्ड. दे वर रनिंग टू द बीच एंड इवन बियॉन्ड द बीच. वो एकदम बीच की तरफ जाते हैं देखने, और एकदम करीब जाते हैं टू वॉच इट, देखने के लिए उसे. No such ebb had been witnessed on that coast within the memory of a living man. एक जीवित इंसान की मेमोरी में उन लोगों ने कभी इस तरह का ebb, इस तरह का भाटा नहीं देखा था. Things never seen before were making apparition. Unfamiliar spaces of ribbed sand and reaches of weed-hung rock were left bare even as Hamaguchi gazed. Hamaguchi भी उन चीजों को परसीव कर रहे थे पहली ही बार. क्या चीजें वो देख रहे थे? वो अनफेमिलियर स्पेसेस, मतलब वो वहां पर हमेशा उन लोगों ने पानी देखा था, लेकिन अब जब पानी पीछे की तरफ जा रहा है लैंड से, तो जो रेत में रिब्ड बन रहे हैं, सैंड में पानी की वजह से पानी पीछे चला गया और सैंड में जो रिब्ड बन रहे हैं, लहरें बन रही हैं, वो कभी किसी ने नहीं देखी थी. ऑफ वीड हंग रॉक were left bare even as Hamaguchi gazed. जब हामागुची उस तरफ देखते हैं तो जो रॉक, बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, पानी में अब अंदर थे वो पत्थर, अब जब पानी उस पर से चला गया, पानी तो पीछे की तरफ जा रहा है, तो वो रॉक जंगली पेड़ों से लदी हुई है. तो वो व्यू तो अभी तक किसी ने नहीं देखा था. And none of the people below appeared to guess what that monstrous ebb signifies. और नीचे के लोगों में से तो कोई भी ये चीज नहीं पता लगा पा रहा था कि ये जो भाटा है वो क्या उसके मतलब है, ये जो पानी बीच की तरफ जा रहा है, लैंड की तरफ ना आके उसके क्या मतलब है.
Hamaguchi Gohei himself had never seen such a thing before, but he remembered things told to him in his childhood by his father's father, and he knew all the traditions of the coast. He understood what the sea was going to do. Perhaps he thought of the time needed to send a message to the village, or to get the priest of the Buddhist temple on the hill to sound their big bell. But it would take very much longer to tell what he might have thought than it took him to think. He simply called his grandson, Tada, quick, very quick, let me a torch. Hamaguchi Gohei himself had never seen such a thing before. इससे पहले हामागुची ने भी इस तरह की चीज कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसे याद था अपने बचपन की बात जब उसके फादर उसके दादा ने, हामागुची के दादा ने उन्हें ये बातें बताई थी. एंड ही न्यू ऑल द ट्रेडिशन ऑफ द कोस्ट. और कोस्टल एरिया में रहे हैं तो उन्हें सारे कोस्ट के बारे में पता है. ही अंडरस्टूड व्हाट द सी वाज गोइंग टू डू. उन्हें समझ आ रहा था कि अब समुद्र में क्या होने वाला है. Perhaps he thought of the time needed to send a message to the village. अब एकाएक उन्होंने के माइंड में आया उनको कि उन्हें विलेजेस को मैसेज देना है, अपनी बात पहुंचानी है, और टू गेट द प्रीस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट टेम्पल ऑन द हिल टू साउंड देयर बिग बेल. और या फिर वो सोच रहे हैं किस तरह से मैं जो पहाड़ी के ऊपर बुद्धिस्ट टेम्पल है वहां के पुजारी को मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि वहां पे जो विशाल सी बेल लगी है वो उसे रिंग कर दें, ताकि उसके सिग्नल से लोगों को पता चल जाए कि समथिंग रॉन्ग विल बी गोइंग टू हैपन. But it would take much longer to tell what he might have thought than it took him to think. अब इतनी सडनली सारी चीजें हो रही हैं कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए. He simply called to him his grandson. वो अपने पोते को बुला लेते हैं, टाडा, उसका नाम है टाडा. क्विक, जल्दी, वेरी क्विक, बहुत जल्दी. लेट मी अ टॉर्च, मशाल लेके आओ मेरे पास. Taimastu or pine torches are kept in many coastal dwellings for use on stormy nights and also for the use of certain Shinto festivals. Pine torches, Taimastu जिसे बोलते हैं, काफी कोस्ट ड्वेलिंग्स में रखी जाती हैं, कोस्टल एरिया के घरों में रखी जाती हैं तूफानी रातों में यूज करने के लिए, and also for use at certain Shinto festival. Shinto festival में भी उन मशालों का यूज किया जाता है. The child kindled the torch at once. जब उसके दादा ने उसे ऑर्डर दिया तो जो बेटा है, टाडा है, पोता है उनका, वो फटाफट टॉर्च को ले आता है. And the old man hurried with it to the fields. और वो मशाल लेकर फील्ड्स में चले जाते हैं, मैदान में चले जाते हैं. Where hundreds of rice stacks representing most of his invested capital. जहां पर करीब 100 राइस के ढेर रखे हुए हैं और उससे उनकी रिप्रेजेंट हो रही है कि उनका कितना पैसा, कितनी कैपिटल उनकी उसमें इन्वेस्ट है, लगी. स्टूड अवेटिंग ट्रांसपोर्टेशन. और वो वहां पर रखी है कि उन्हें ट्रांसपोर्ट करा जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, सेल करा जाएगा. अप्रोचिंग दोज नियरेस्ट द वर्ज ऑफ द स्लोप ही बिगैन टू अप्लाई द टॉर्च टू देम. वो करीब पहुंचते हैं एक किनारे पे उस पहाड़ स्लोप की एरिया के. He began to apply the torch to them. वो मशाल लगाना स्टार्ट कर देते हैं उन राइस स्टैक्स में. Hurrying from one to another as quickly as his aged limbs could carry him. उनके जो बूढ़े हाथ पैर हैं उन्हें जितनी दूर तक ले जा सकते हैं वो जल्दी जल्दी एक ढेर में, दूसरे ढेर में, तीसरे ढेर में, लाइन से जो राइस के स्टैक्स लगे हैं उसमें आग लगा रहे हैं. The sun-dried stacks caught like tinder. वो बहुत तेजी से आग पकड़ लेते हैं जो सूरज में सुखाई हुई स्टैक्स ढेरियां लगी हुई हैं. द स्ट्रेंथनिंग सी ब्रीज ब्लू द ब्लेज लैंडवर्ड. और जो स्ट्रेंथनिंग ब्रीज है वो लैंड की तरफ लपटों को ले जा रही है. एंड प्रेजेंटली रैंक बिहाइंड रैंक द स्टैक्स बर्स्ट इनटू फ्लेम. और देखते ही देखते जो राइस के स्टैक्स हैं एक स्टैक से दूसरे स्टैक में फटाफट से आग लग जाती है, तब आग की लपटें बन जाती हैं. Sending skyward columns of smoke that met and mingled into one enormous cloudy whirl. सब आसमान की तरफ धुआं उड़ के जाता है और एक बड़ा सा विशाल सा enormous cloud बन जाता है धुएं का, जो हवा में घूमता हुआ आगे की तरफ जाता है. टाडा astonished and terrified. टाडा ये सारी चीजें देख के हैरान हो जाता है, अचंभित हो जाता है और डर जाता है. Ran after his grandfather crying. और रोता हुआ अपने दादा की तरफ पीछे भागता है. ओजिसा why? ओजिसा why? अरे ओजिसा क्यों आप क्रॉप्स में, बच्चे को तो नहीं समझ आ रहा है ना, वो कह रहा है ओजिसा दादाजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो. But Hamaguchi did not answer. He had no time to explain. He was thinking only of the 400 lives in peril. Hamaguchi कोई आंसर नहीं करते क्योंकि उनके पास समय नहीं है उस बच्चे को एक्सप्लेन करने का that why he is doing such thing. और इस समय उन्हें जो पेरिल डेंजर में 400 लोगों की जिंदगी है बस वो दिख रही है.
For a while, the child stared widely at the blazing rice, then burst into tears. वो बच्चा उन राइस को जलते हुए अपने सामने देखता है और एकदम घबरा सा जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है. And ran back to the house, और दौड़कर अपने घर वापस चला जाता है, feeling sure that his grandfather had gone mad. उसे यही लग रहा है कि उसके ग्रैंडफादर पगला गए हैं. Hamaguchi went on firing stack after stack till he had reached the limit of his speed. वो एक उनका बस वही काम है, वो एक स्टैक से दूसरी स्टैक तीसरी स्टैक, जब तक वो एक एंड तक नहीं पहुंच जाते तब तक वो ढेर में आग लगाते जाते हैं राइस के. Then he threw down his torch and waited. फिर वो अपनी मशाल को फेंक देते हैं और इंतजार करते हैं. The acolyte of the hill temple, observing the blaze, said the big bell booming. Acolyte of the hill temple, वो जो पुजारी थे पहाड़ी टेम्पल के, वो ब्लेज को देखते हैं, उस आग की लपटों को देखते हैं और जो उनके यहाँ बड़ी सी बेल लगी हुई है उसे बूम कर देते हैं, बजाते हैं. एंड द पीपल रिस्पॉन्डेड टू द डबल अपील. अब एक तो लपटें दिख रही हैं, एक तरफ से वो वर्ली क्लाउड दिख रहा है धुएं का, और दूसरी तरफ वो बिग बेल रैंग कर दी है पुजारी ने, तो वो डबल अपील हो गई कि हाँ कुछ खतरा है. तो उसे देखकर वो रिस्पॉन्स करते हैं विलेजर्स, मतलब वहां से भागते हैं. Hamaguchi watched them hurrying in from the sands and over the beach and up from the village, like a swarming of ants, and to his anxious eyes, scarcely faster, for the moment seemed terribly long for him. और वो किस तरह से प्रेरणा हो रहे हैं, उसे भागते हुए नीचे की तरफ से सारे विलेजर्स गांव छोड़ के ऊपर की तरफ आते हैं. उसे लग रहा है ऐसा दूर से देखने पे जैसे लग रहा है कि आंट्स का झुंड नीचे की तरफ से आ रहा है और उसकी आंखों में एंशियसनेस है. एंड ही वॉन्ट्स कि वो और ज्यादा तेजी से आए, और ज्यादा तेजी से आए. फॉर द मूवमेंट सीम टेरिबली लॉन्ग, क्योंकि जो मूवमेंट उसे लग रहा है वो लग रहा है कि बहुत टेरिबल मूवमेंट है. वो चाह रहा है कि बस जल्दी से ही वो वापस आ जाए गांववासी. The sun was going down the wrinkled bed of the bay, and a vast sallow speckle expanse beyond it lay naked to the last orange glow, and still the sea was feeling toward the horizon. The sun was going down, सूरज नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब सूरज डूबने को है. The wrinkled bed of the bay, उस खाड़ी का जो एरिया है सिकुड़ सा गया है. And a vast sallow speckle expanse beyond it, उसके सामने एक विशाल येलो कलर का इस क्षेत्र फैला हुआ है सामने. Lay naked to the last orange glow, खाली सा पड़ा हुआ है, वो सूरज की आखिरी किरण उस लैंड पे पड़ रही है, वो चमक रहा है. एंड स्टिल द सी वॉज फ्लीइंग टुवर्ड द हॉरिजन, और समुद्र तो बस बीच की तरफ पानी सारा समुद्र का इकट्ठा होता जा रहा है. Really, however, Hamaguchi did not have very long to wait before the first party of succor arrived. A score of agile young peasants who wanted to attack the fire at once, but Choja, holding out both arms, stopped them. Really, however, सच में, किंतु Hamaguchi did not have very long to wait before the first party of succor arrived. Hamaguchi को बहुत ज़्यादा समय इंतज़ार नहीं करना पड़ा. जब पहली जो नीचे से आ रहे हैं उसमें यंगस्टर्स के ग्रुप हैं, लेडीज़ के ग्रुप हैं, तो जो ज़्यादा ताकतवर है वो सबसे पहले आगे आ जाते हैं. तो उसमें कौन है? A score of agile young peasants, कुछ स्ट्रॉन्ग जवान किसान हैं, कम से कम 20, स्कोर मीन्स लगभग 20, who wanted to attack the fire at once, जो चाह रहे हैं कि वो आग पे फटाफट से अटैक कर दें एक बार में, मतलब आग को बुझा दें. But the Choja, holding out both arms, stopped them. लेकिन चोजा एकाएक ही हाथ खोल के अपने खड़े हो जाता है, रोकता है उन लोगों के उसे फायर को बुझवाना नहीं है. Let it burn, lads, लड़कों इसे जलने दो. He commanded, वो ऑर्डर करता है. Let it be, ऐसा होने दो. I want the whole Mura here, मैं चाहता हूँ कि पूरा विलेज यहाँ आ जाए. There is a great danger, ताहिंदा, unbelievable, ताहिंदा means unbelievable, बड़ा ही खतरनाक डेंजर है, आने वाला है, और unbelievable है जो जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता. The whole village was coming and Hamaguchi counted. Hamaguchi गिन रहा है अपने गांव वालों को और पूरा गांव एकाएक करके आ रहा है. All the young men and boys were soon on the spot. जल्द ही youngsters जल्दी ही आ जाते हैं, young men और boys, and not a few of the more active women and girls. और ऐसा नहीं है कि एक्टिव विमेन्स और गर्ल्स पीछे रह जाती हैं, वो भी आ जाती हैं जल्दी जल्दी. देन केम मोस्ट ऑफ द ओल्डर फोक, उसके बाद आते हैं बूढ़े लोग, क्योंकि वो ऑब्वियसली धीमे चलेंगे. एंड मदर्स विद बेबीज एट देयर बैक्स, और बच्चों का जो बोझ उठाए हैं माएँ अपने कंधों पे, वो भी
थोड़ा बाद में आती हैं, एंड इवन चिल्ड्रन, और बच्चे भी. फॉर चिल्ड्रन कुड हेल्प टू पास वाटर, and the elders, too feeble to keep up with the first rush, could be seen well on their way up the steep ascent. बच्चे इसलिए और तेजी से आ रहे हैं कि वो भी पास कर देंगे पानी आग बुझाने के लिए, और जो एल्डर्स हैं जो काफी कमजोर हैं वो अभी भी उसे दिख रहे हैं. फर्स्ट रश कुड बी सीन वेल ऑन देयर वे अप टू स्टीप एसेंट, उस ढालू चढ़ाई पे अभी भी दिख रहे हैं चढ़ते हुए. The growing multitude is still knowing nothing. वो बढ़ती हुई भीड़ को अभी भी कुछ नहीं पता है. Looked alternatively, इधर उधर देख रहे हैं. In sorrowful wonder, दुख भरी आश्चर्य में इधर उधर देख रहे हैं. At the flaming fields, उसके जलते हुए मैदान में. And at the impassive face of their Choza, उस feelingless face को चोजा के, ना ही उसके अंदर दुख है, ना ही खुशी है, ना ही अब उसकी पूरी राइस की क्रॉप्स उन लोगों को लग रहा है जल गई, लेकिन उसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है. Impassive means feelingless. And the sun went down, और धीमे धीमे सूरज डूब जाता है. Grandfather is mad, I am afraid of him, sobbed Tada. In answer to a number of questions, he is mad. He set fire to the rice on purpose. I saw him to do it. Grandfather is mad. अब चोजा बता रहा है कि ग्रैंडफादर तो पगला गए हैं. आई एम अफ्रेड ऑफ हिम, मुझे इनसे डर लग रहा है. सॉब टाडा, सितकता हुआ बताता है. इन आंसर टू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जब लोग उससे सवाल कर रहे हैं ये क्या हो गया, राइस की क्रॉप्स में आग कैसे लग गई, क्या हो गया, तो जब वो लोग उससे पूछ रहे हैं तो वो यही बता रहा है ग्रैंडफादर पागल हो गए हैं. ही इज मैड टू सेट फायर टू द राइस ऑन पर्पस, इन्होंने जानबूझकर राइस की क्रॉप्स में आग लगाई है. आई सॉ हिम डू इट, मैंने देखा है इन्हें ऐसा करते हुए. As for the rice, cried Hamaguchi, the child tells the truth. अगर मैं राइस की बात करूं तो हामागुची कहते हैं बच्चा सच बोल रहा है. I set fire to the rice. Are all the people here? मैंने ही इसमें आग लगाई है, क्या सारे लोग आ गए हैं? The Komicho and the heads of the families looked about them and down the hill and made reply. All are here or very soon will be. We cannot understand this thing. कोमिचो मतलब मुखिया या घर के जो फैमिली के हेड्स हैं वो देखते हैं भाई सब लोग आ गए हैं या नहीं, पहाड़ी की तरफ देखते हैं और रिप्लाई करते हैं कि भाई सब आ गए हैं और जो नहीं आए वो जल्दी ही आ जाएंगे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है. कीटा shouted the old man at the top of his voice, pointing to the open. Say now if I be mad. कीटा means north, north की तरफ इशारा करते हुए. shouted the old man, वो ओल्ड मैन चिल्लाता है जितना वो चिल्ला सकता है. एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, पॉइंटिंग टू द ओपन, ओपन एरिया में पॉइंट करके दिखाता है और कहता है अब कहो कि मैं पागल हूं. थ्रू द ट्वेलाइट ईस्टवर्ड ऑल लुक्ड, पूरब की तरफ उस ट्वेलाइट इवनिंग की रोशनी की वजह से देख पा रहे हैं उधर. एंड सॉ एट द एज ऑफ द डस्की हॉरिजन अ लॉन्ग लीन डिम लाइन लाइक द शेडोइंग ऑफ अ कोस्ट वेयर नो कोस्ट एवर वॉज. And so at the edge, वो किनारे पर दिखते हैं. Of a dusky horizon, उस धुंधला सा हॉरिजन की तरफ जहां लंबा सा पतला सा डिम सी लाइन बन रही है. इट इज लाइक अ शेडोइंग ऑफ अ कोस्ट, ऐसा लग रहा है कि ये कोस्ट की शेडो है जहां पर कभी भी कोस्ट नहीं हुआ करती थी. अ लाइन दैट थिकन एज दे गेज्ड, वो लाइन जो चौड़ी होती जा रही है जैसे जैसे वो उसकी तरफ देख रहे हैं. That broadened as a coastline broadens to the eyes of an approaching it, जहां तक उसकी आंख पहुंच रही है, जहां तक दृष्टि पहुंच रही है, वहां तक वो जो छाया बन रही है कोस्टलाइन की वो वहां तक पहुंच रही है. Yet incomparably more quickly, और बता नहीं सकते, कंपेयर नहीं कर सकते उसे कि कितनी तेजी से वो लाइन बढ़ रही है. For that long darkness was the returning sea, जो वो लाइन क्रिएट हो रही है डार्कनेस की, शेडो फॉर्म हो रही है ट्विलाइट में, वो किस चीज की शेडो है, जो वापस आ रहा है समुद्र. टावरिंग लाइक अ क्लिफ, पहाड़ की चोटी की तरह ऊपर टावर बन रहा है, उसकी शेडो फॉर्म हो रही है, उसकी शेडो को डिस्क्राइब करा है यहाँ पे. एंड coursing more swiftly than the kite flies, और उतनी तेजी से, जितनी तेजी से पतंग उड़ती है उतनी तेजी, उससे भी ज्यादा तेजी से ये आगे की तरफ बढ़ रही है. सुनामी श्राइक द पीपल, लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं इट्स सुनामी. And then all shrieks and all sounds and all power to hear sounds were annihilated by a nameless shock heavier than any thunder. किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक नेमलेस शॉक उसे कहा है, जो पानी का चोटी बन के ऊपर की तरफ आया और पूरा पानी
एक नई कोस्ट लाइन की तरह फॉर्म हो गई उसकी परछाई, और पूरा पानी स्मोट कर गया आगे की तरफ। उसकी वजह से सारी चीखने की आवाज, सारी सुनने की पावर सब एनिहिलेट हो जाती है, सब खत्म हो जाती है। At the colossal swell smote the shore with a weight that sent a shudder through the hills. And the colossal swell, वो जो बड़ा विशाल सा उफान था, smote the shore, वो टकराया किनारों से, with the weight, इतनी ताकत के साथ, that sent a shudder, वो कपकपी की साउंड दूर तक आती है पहाड़ियों तक। And with a foam burst like a blaze of sheet lightning, और उसमें से जो फोम निकलता है वो ऐसा चमक रहा है जैसे कि बिजली की चमक होती है। Then for an instant nothing was visible but a storm of spray rushing up the slope like a cloud, and then the people scattered back in panic from the mere menace of it. Then for an instant nothing was visible, एकाएक उन लोगों को अपने सामने कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक स्टॉर्म दिख रहा था, बौछार सी दिख रही थी उस जो उनकी तरफ स्लोप की तरफ आगे बढ़ रही थी बादलों की तरह। And the people scattered back, और लोग बिखर के पीछे की तरफ जाते हैं घबरा कर, in panic from the mere menace of it, सिर्फ उसकी आशंका में कि ये इतनी तेज ऊपर आया है पानी तो कहीं और ऊपर ना आ जाए, सिर्फ उसकी आशंका में, डाउट में। When they looked again, they saw a white horror of sea raving over the place of their homes. जब वो वापस फिर से देखते हैं उस तरफ तो वो क्या देखते हैं? एक पानी का सफेद भय देखते हैं। Sea raving over the place, सिर्फ समुद्र चिल्ला रहा है नीचे, उफान है, सिर्फ पानी का ही उफान है नीचे, of their homes, जहाँ पे उनके घर हुआ करते थे। It drew back roaring, फिर वो वापस दहाड़ता हुआ जाता है, and tearing out the bowels of the land, और जब वो वापस जाता है तो ऐसा लग रहा है कि अंदर की जमीन की अंतड़ियां को खाली कर जाता है। Twice, thrice, 5 times the sea struck and ebbed, समुद्र ऊपर की तरफ आया और फिर पीछे की तरफ चला गया। But each time with lesser surges, और हर बार जो उसकी सर्ज है, उफान है, वो कम हो जाती है। Then it returned to its ancient bed and stayed, फिर वो वापस अपने पुराने क्षेत्र में पानी चला जाता है और रुक जाता है। Still raging as after a typhoon, तूफान के बाद की दहाड़ जैसे होती है, बस उस तरह से अब प्रिटेंड हो रहा है। On the plateau for a time there was no word spoken, कुछ समय तक उस प्लेट्यू पे जहां पर अब सारे विलेजेस भी इकट्ठा हैं, एक अल्फाज भी नहीं बोला गया। All stared speechlessly at the desolation beneath, नीचे की तरफ जो बर्बादी हो गई है, सब केवल उस तरफ देख रहे हैं। The ghastliness of hurled rock and naked riven cliff, the bewilderment of scooped up deep sea rack and shingle shot over the empty site of dwelling and temple. Ghastliness, वो भयानकता की तरफ देख रहे हैं। Hurled rock, जो ऊपर की तरफ फेंकी गई है, पानी की वजह से, पानी के जोर की वजह से ऊपर की तरफ रॉक्स आ गए हैं। एंड नेकेड राइवन क्लिफ, और नंगी चोटियां हैं, टूटी फूटी चोटियां हैं। द बेविलरमेंट ऑफ स्कूप्ड अप डीप सी रैक, वो डिस्ट्रैक्टेड अंदर की तरफ से जो स्कूप्ड अप डीप सी गहराई की तरफ से आई हैं, समुद्री घास, रैक मतलब समुद्री घास, एंड शिंगल और पत्थर, शॉट ओवर द एम्प्टी साइट ऑफ ड्वेलिंग एंड टेम्पल, घर और जहाँ पे टेम्पल था वहां पर उसके जो बीच में जगह थी वहां पर वो शिंगल, रैक, समुद्री घास और क्या पड़ा है? पत्थर छोटे छोटे पड़े हैं जो सी के द्वारा ऊपर फेंके गए हैं। द विलेज वॉज नॉट, गांव नहीं था। The greater part of the fields were not, मैदानों का बड़ा बड़ा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया था। Even the terraces had ceased to exist, जो टेरेस्ड एरिया था वो भी अब नहीं दिख रहा था। It stopped to exist, ऐसा लग रहा था कि अब वो भी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। And of all the homes that had been about the way, there remained nothing recognizable except 2 straw roofs tossing madly in the offing. जो बे के किनारे घर स्थिर थे उसमें से भी कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी रिकॉग्नाइजेबल नहीं था, पहचानने योग्य नहीं था कि हाँ ये किसका घर था या ये किसका घर था, कुछ भी वहां पे पहचानने योग्य नहीं था। सिर्फ 2 रूफ की बनी छतें थी और बुरी तरह से टॉस कर रही थी ऑफिंग में, पानी में, समुद्र के। द आफ्टर टेरर ऑफ द डेथ एस्केप्ड, मौत के बाद के डर से तो बच गए। एंड द स्टूपेफैक्शन ऑफ द जनरल लॉस केप्ट ऑल लिम्स डम until the voice of Hamaguchi was heard again, observing gently. And the stupefaction of the general loss, पागलपन है आम लॉस का, जिंदगी के तो लॉस नहीं हुआ लेकिन बाकी सब चीजों का तो नुकसान हो गया ना,
उसकी वजह से सब खामोश हैं। Until the voice of हामागुची, जब तक हामागुची की आवाज नहीं दोबारा सुनाई देती तब तक सब खामोश रहते हैं। वो माहौल को ऑब्जर्व करके बोलते हैं, That was why I set fire to the rice. यही रीजन था कि मैंने आग लगाई थी राइस में। He, their Choza, now stood among them almost as poor as the poorest, for his wealth was gone. But he had saved 400 lives by the sacrifice. ये जो उनके richest person थे वो अब उनके साथ खड़े हैं, उतने गरीब है जितना कि वहां का सबसे ज्यादा poorest बंदा था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी wealth को खो दिया है, उनकी पूरी wealth जा चुकी है, लेकिन उसको उन्होंने sacrifice करके 400 लोगों की जिंदगियों को बचाया। Little Tada ran to him and caught his hand and asked forgiveness for having said naughty things. छोटा टाडा जो उनका पोता है 10 साल का, वो उनका हाथ पकड़ता है और माफी मांगता है जो उसने कुछ naughty things कही, उन्हें पागल वागल बोला। Whereupon the people woke up knowledge of why they were alive. अब लोगों को ये पता चल गया, इस चीज से वो लोग उजागर हो गए कि आज वो क्यों जिंदा है। And began to wonder at simple unselfish foresight that had saved them. अब वो आश्चर्य करें उन चीजों पे कि ये दूरदर्शी और दूरदर्शी होना एक अलग चीज हो गई, उसके साथ साथ उनका इसमें क्या फायदा था। अपनी राइस, वो तो ऊपर की तरफ थे, उनका इसमें क्या फायदा था, अपनी सारी राइस की क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अनसेल्फिश फोरसाइट दैट हैड सेव्ड देम, उनके अंदर सेल्फिशनेस नहीं थी, उनके अनसेल्फिश होने की वजह से आज वो लोग जीवित हैं। एंड द हेडमैन प्रोस्ट्रेटेड देमसेल्व्स इन द डस्ट, और अपने आप को एकदम समर्पित कर देते हैं। बाकी के जो हेडमैन होते हैं एकदम धूल में गिर जाते हैं उनके सामने, हामागुची गोही के सामने। एंड द पीपल आफ्टर हिम, और बाकी के लोग उनके पीछे। Then the old man wept a little, partly because he was happy and partly because he was aged and weak and had been sorely tired. अब उन बूढ़े हामागुची के आंखों में आंसू आ जाते हैं, थोड़ा सा रोने लगते हैं। थोड़ा वो इसलिए क्योंकि वो खुश हैं इतना महान काम करके, और थोड़ा इसलिए क्योंकि वो काफी एजेड हैं, उन्होंने कितनी मेहनत से आग लगाई अपनी राइस की क्रॉप्स में, इसलिए वो बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं। My house remains, he said as soon as he could find words. जब वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे तो उन्हें जब अल्फाज मिले कुछ बोलने के, तो वो कहते हैं कि मेरा घर है, मेरा घर बचा है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ था प्लेट्यू पे। Automatically caressing Tada's brown cheeks, वो उस टाडा के गालों को थपथपाते हुए बोलते हैं, there is room for many, और उनका घर काफी बड़ा है, वहां पर काफी जगह है लोगों के लिए। Also the temple on the hill stands and there is shelter there for the others. बाकी के लोगों के लिए जो पहाड़ी पर टेम्पल है वहां पर लोगों के लिए जगह है। Then he led the way to his house and the people cried and shouted. उनकी महानता में लोग चिल्लाते हैं और शाउट करते हुए जाते हैं और वो घर की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये स्टोरी का डिस्क्रिप्शन खत्म होता है। अब आगे देखते हैं। The period of distress was long because in those days there were no means of quick communication between district and district and the help needed had to be sent from far away. तो ये जो परेशानी का समय था वो काफी लंबा चला, क्योंकि उन दिनों कोई क्विक मीन्स नहीं था कि हम एक शहर से दूसरी शहर आसानी से कम्युनिकेट कर सकें, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, और जो मदद आनी थी वो काफी दूर से आनी थी। But when better times came, the people did not forget their debt to Hamaguchi Gohi. लेकिन जब बेहतर समय आता है तो अपना कर्ज नहीं भूलते हामागुची गोही के प्रति जो था उनका। They could not make him rich, nor would he have suffered them to do so. वो उन्हें हामागुची को दोबारा से वो लोग अमीर तो नहीं बना सकते, और ना ही हामागुची दोबारा ये चाहेंगे कि वो लोग सफर करें उनकी वजह से, उन्हें अमीर बनाने की वजह से। Even had it been possible, अगर ये पॉसिबल होता तब भी हामागुची ये नहीं चाहते। Moreover, gifts could never have sufficed as an expression of their reverential feeling towards him. और फिर गिफ्ट्स ही सिर्फ केवल पर्याप्त नहीं थे, इतने ज्यादा वो रिस्पेक्टफुल थे कि रिस्पेक्टफुल फीलिंग शो करने के लिए सिर्फ गिफ्ट्स ही इनसफिशिएंट नहीं थे टुवर्ड्स हिम, उनके प्रति। For they believed that the ghost within him was divine, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि जो उनके अंदर घोस्ट मतलब यहाँ पे आत्मा है, स्पिरिट है, वो डिवाइन है, देवी है।
सो दे डिक्लेयर्ड हिम अ गॉड, दैट्स वाई देखिए आपके चैप्टर का भी नाम है लिविंग गॉड, तो इसलिए लोग हामागुची गोही को डिक्लेयर कर देते हैं अ गॉड. And thereafter called him Hamaguchi Daimyojin. Daimyojin means a shining deity, एक चमकते हुए देवता. Thinking they could give him no greater honor, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं इससे ज्यादा हम सम्मान और कोई नहीं दे सकते. And truly no greater honor in any country could be given to mortal man. Mortal man को इससे ज्यादा सम्मानित कोई चीज नहीं मिल सकती कि उन्हें ईश्वर के दर्जा दे दिया जाए. And when they rebuilt the village, they built a temple to the spirit of him. जब उन लोगों ने दोबारा से विलेज को क्रिएट कर लिया, डेवलप कर लिया, तो वहां पर उन्होंने मंदिर बनाया, उनकी स्पिरिट के लिए मंदिर बनाया. And they fixed above the front of it a tablet bearing his name in Chinese text of gold. और वहां पे सामने ही उन्होंने लोगों ने चाइनीज में हामागुची गोही का नाम लिख के गोल्ड में लगाया. And they worshipped him there, और वहां पर वो उनकी स्पिरिट को पूजते थे. With prayer and with offerings, प्रसाद चढ़ाते थे और प्रेयर्स के साथ. How he felt about it I cannot say, मैं नहीं कह सकता कि उन्हें कैसा लगता था उस समय. I know only that he continued to live in his old thatched home upon the hill. लेकिन उन्हें ये पता चलता है, ये जो राइटर है वो बता रहे हैं कि मुझे ये पता चला कि वो ऊपर अपनी हिल में मौजूद थे, रहते थे, उसके बावजूद उनके लिए टेम्पल नीचे बना लिया गया था, गाँव वासियों ने बना लिया था. With his children and his children's children, अपने पोतों के साथ रहते थे, अपने बच्चों के साथ रहते थे वो वहां पर. Just as humanly and simply as before, एकदम इंसानों की तरह जैसा कि वो पहले रहा करते थे. While his soul was being worshipped in the shrine below, और जबकि उनकी आत्मा के नीचे श्राइन में, मंदिर में पूजा होती थी. 100 years and more he has been dead. 100 साल और कुछ उससे ज्यादा वो, उसके बाद उनकी डेथ हो गई. But his temple, they tell me, still stands. लेकिन उनका टेम्पल आज भी खड़ा है, लोगों के ने उन्हें बताया, ऑथर को. And the people still pray to the ghost of the good old farmer to help him in time of fear or trouble. और आज भी उनकी स्पिरिट को उस गुड ओल्ड फार्मर मतलब हामागुची की स्पिरिट की पूजा की जाती है. जब भी वो लोग प्रॉब्लम में होते हैं तो उनके श्राइन में जाके उनकी पूजा करते हैं. I asked a Japanese philosopher and friend to explain me how the peasants could rationally imagine the spirit of Hamaguchi in one place while his living body was in another. यहाँ पे ऑथर थोड़ा अपने बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैंने अपने एक जापानीज फिलोसोफर जो कि उनका दोस्त भी हुआ करता था, उससे पूछा कि वो उन्हें एक्सप्लेन करे कि कैसे जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो कैसे लॉजिकली इस चीज को इमेजिन कर सकते थे कि जो स्पिरिट थी हामागुची की वो एक प्लेस पे थी और उनकी जो लिविंग बॉडी थी वो दूसरी प्लेस पे थी. मीन्स वो जीवित थे और अपने घर में रहते थे अपने बच्चों पोतों के साथ, और उनकी आत्मा की पूजा नीचे मंदिर में होती थी. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान रह रहा है, मौजूद है, मतलब जीवित है, और उसकी आत्मा की पूजा नीचे हो रही है? उसमें उनका क्या लॉजिक था? Also I inquired whether it was only one of his souls which they had worshipped during his life, and whether they imagined that particular soul to have detached itself from the rest to receive homage. और फिर उन्होंने कहा, मैंने ये भी इंक्वायरी करी कि क्या सिर्फ वही ऐसी आत्मा थी जिनकी पूरी लाइफ में अपनी लोगों ने वर्शिप करी? क्या सिर्फ वही एक ऐसे थे? And whether they imagined that particular soul to have detached itself from the rest to receive homage, या फिर वो ऐसा परसीव करते थे कि वही केवल एक ऐसी आत्मा थी जिसने अपने आप को उनसे अलग कर लिया था ताकि उनको श्रद्धांजलि दी जाए, ट्रिब्यूट दिया जाए. The peasants, my friend answered, think of the mind or spirit of a person or something which, even during life, can be in many places at the same instant. Such an idea is of course quite different from the Western ideas about the soul. The peasants, my friend answered. तो मेरा जो दोस्त था जापानीज फ्रेंड, वो मुझे आंसर करता है कि जो किसान लोग होते हैं, think of the mind, वो माइंड के बारे में सोचते हैं, और स्पिरिट ऑफ अ पर्सन या फिर जो इंसान की आत्मा होती है उसके बारे में सोचते हैं एज समथिंग विच, वो एक ऐसी चीज है इवन ड्यूरिंग लाइफ, कि अपनी पूरी लाइफ में कैन बी इन मेनी प्लेसेस एट द सेम इंस्टेंट. उनकी ये मान्यता है, उन पेजेंट्स की मान्यता थी कि एक इंसान की आत्मा सेवरल जगह हो सकती है. और जो ये आइडिया है वो ऑफकोर्स वेस्टर्न आइडिया से डिफरेंट है. Any more rational? I mischievously asked. थोड़ा सा मिस्चीवियस वे में पूछते हैं अपने फ्रेंड से, क्या कुछ और लॉजिकल रीजन है इसके पीछे?
Well, he responded with a Buddhist smile. उनका जो फ्रेंड है वो बुद्धिस्ट है, वो अपने बुद्धिस्ट स्माइल के साथ रिस्पॉन्ड करता है. If we accept the doctrine of the unity of all mind, the ideas of the Japanese peasant would to contain at least some adumbration of truth. I cannot say so much for your Western notions about the soul. तो यहाँ पे क्या कहता है, जो उनका जापानीज फिलोसोफर फ्रेंड है वो कहता है, if we accept the doctrine of the unity of all mind, doctrine means सिद्धांत, जो ये सिद्धांत है unity of all mind, unity of all mind means that the idea of people that they combinedly work together still having differences. तो अगर इस doctrine को मानते हैं अगर हम, the idea of the Japanese peasant, तो जो आइडिया लगा रहे हैं, जो उनका सिद्धांत है Japanese peasant का, it would appear to contain at least some adumbration of truth, तो शायद उनमें ग्लिम्स है कुछ ना कुछ सच्चाई की, जो उनका मान्यता है कि एक आत्मा अलग अलग जगह हो सकती है. I could not say so much for your western notions, मैं तुम्हारे वेस्टर्न विचारों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता about the soul, सोल के बारे में, कि तुम लोग किस तरह से परसीव करते हो सोल को, या तुम्हारे अंदर सोल को लेके क्या मान्यताएं हैं.